So I hope the topic which we have studied just now regarding the disguised unemployment is very clear to you. Yesterday also I had discussed this with you. So the next topic is that how more employment opportunities can be created. Clear? So the first is that we need to improve our secondary sector. Clear? Let's see some points from the chapter. Now you can open on page number 28. On page number 28, see first paragraph. Now suppose a dam is constructed and canals are dug to irrigate many farms. So it means that if there are construction activities are going on, so those are creating opportunities for more people to get employed. Maybe this can be only for the time being till that dam is constructed or the particular construction which has started is complete, but somewhere or the other people will be employed. So the main reason of brain drain, हम कब से ये पढ़ते आ रहे हैं कि brain drain है, and now we see that students in large number, they take the basic education from India, but they are migrating to other countries. The biggest reason for migrating to the other countries is that we don't have enough employment opportunities for our children over here. As a result, they are looking for better opportunities and moving abroad. Now, next is second point, that how more employment can be created. See in the next paragraph, after the example of Lakshmi is given, leave 2-3 lines, and then if the government invests some money in transportation and storage of crops, transportation and storage दोनों कौन सी एक्टिविटी है? टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज. क्लियर? So storage, transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere. Several farmers like Lakshmi can now have a better access to water and the production will increase. They will start selling their produce outside in the market. They will not be only dependent on the village traders. आपको याद है हमने 9th में 7th स्टैंडर्ड में ये एग्जांपल पढ़े थे कि हाउ जो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? बिग लैंडलॉर्ड्स. ठीक है? और बिकॉज क्योंकि उन्होंने उनसे लोन लिए होते हैं, पैसे लिए होते हैं, ठीक है, तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं अपने क्रॉप्स भी उनको ही सेल करने के लिए. एंड वी नो दैट व्हाट डू दे टेक एट अ लेसर रेट एज कंपेयर टू द मार्केट रेट. और उसमें ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दे नो दैट दे हैव टेकन लोन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स और फ्रॉम द बिग फार्मर्स, एंड व्हेनेवर देयर विल बी एनी इमरजेंसी इट विल बी दीस पीपल हु विल कम टू देयर रेस्क्यू. राइट? इट इज नॉट इजी. आगे हम मनी एंड क्रेडिट का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. देन वी विल सी that how these people who take loans from the informal sector, how they suffer. तो ये informal sector में ही आ जाता है, taking money from the landlord. Now next is you can see further, इसमें भी वो example दिया हुआ है. Further if we read, इसमें भी that example is given over here also. So another way on the next side, see another way by which we can tackle this problem is to identify and promote local industries. I told you secondary sector, चाहे वो small scale industry है, चाहे cottage industry है, चाहे कोई craft industry है, clear, चाहे कोई usage industry है. So by increasing the secondary sector, improving the secondary sector, so what we can do is we can tackle this problem is to identify and promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. So that is जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है हमारी. तो ये जो हमारे आर्टिजन्स हैं हमारे पास, जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, जिसके लिए इंडिया बहुत फेमस था पहले, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इन इंडस्ट्रीज को इनकरेज कर सकती है. जैसे अब आपने इसमें 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, ये क्लॉथ कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं
अभी तक भी हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटी ऑफ क्लॉथ है विच इज स्टिल मेड ऑन अ सेमी मशीन्स, जो खड्डियां होती हैं जिसको हम कहते हैं, उस पे हमारी साड़ियां हैं, साउथ में सिल्क के कुछ ऐसे हैं, पॉटर्स हैं, हमारा ब्रास का काम है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इनले वर्क। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी छोटा छोटा कलम मीनाकारी का काम होता है, प्लस पंजाब में जैसे फुलकारी बनती है, पंजाबी जुत्ती बनती है। सो इस इन सब चीजों को अगर हम एक प्रॉपर वे से गवर्नमेंट इनको हमने पढ़ा था, इसमें आगे हम उसमें पढ़ाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक हम पढ़ेंगे आगे जाके दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो तब आपको और डिटेल में ये चीज समझ आ जाएगी। व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे इज दैट वी कैन मेक सच ग्रुप्स जहां पर हम अपनी लोकल क्राफ्ट मींस कि एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती है, एंड इन इंडिया वी हैव इमेंस वैरायटी ऑफ सच क्राफ्ट्स दैट वी कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट इट। हमारे पास इतनी वैरायटी है ऐसे क्राफ्ट्स की, तो अगर थोड़ा गवर्नमेंट प्लान करके इसको स्मॉल स्केल लेवल पे ही हमारे रीजनल क्राफ्ट्स, जैसे हम अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें, वहां पर नमदे बनते हैं, वहां पर इतनी अच्छी पेपर मैशी होती है, मतलब हर एक स्टेट में हमारे पास एक इतना डिस्टिंग्विश्ड आर्ट है जिसको हम अच्छी तरह से मैनेज करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर, एक तो हम उन आर्टिजन्स की उस अपनी क्राफ्ट को हम अलाइव कर सकते हैं दोबारा, प्लस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड नेक्स्ट लेटर ऑन इसके लिए हम क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट्स। in the western countries people are very fond of handmade products, right? So next is that similarly in the other areas, if possible, industries that process vegetable and agriculture produces like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे पंजाब जैसी स्टेट है, जो पंजाब जैसी स्टेट है, यहाँ पर हमारे पास दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। आपने देखा है कि छोटा नागपुर एरिया में हमारी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वहां पर कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लेट्यू रीजन में क्या होता है, हमें जो ज्यादा मिनरल्स हैं वो प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं, और इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी फ्रॉम अ नियर बाय एरिया। अगर हमें रॉ मटेरियल ही इंडस्ट्री के लिए बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। क्लियर? सो इसी तरह पंजाब में जब हमारे पास एग्रेरियन स्टेट है हमारी, ठीक है, एग्रीकल्चर इज द डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन, तो जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था दैट गवर्नमेंट शुड इनकरेज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को डायरेक्टली यूज करके, जैसे आजकल हम प्रिजर्व्ड पीज के बारे में हम बता सकते हैं, देन पोटैटो से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये कॉर्न्स जो है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो स्वीट कॉर्न्स आप खाते हो, ये मक्की बहुत होती है पंजाब में, शुगर केन है, शुगर केन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आपको मैंने उस दिन बताया था कि पंजाब इस गुआवा बहुत होता है, कीनू बहुत होता है, तो इसके जो सिट्रस जो हैं, जूसेस हैं, जैम्स हैं, सॉसेस हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट शुड इनकरेज, और ये तो बहुत छोटे लेवल पे ही हो जाता है। आपको पता है ना, आपके दादी जी घर में, आपके मदर सब अचार डालते हैं, ठीक है ना, अचार डालते हैं, पहले सॉस भी घर में बना लेते थे, whenever tomatoes are very cheap in the market, जब सीजन होता है तो टोमेटो सॉस भी घर में बना लेते थे, my mother also used to do। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसे ही मिलके एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाती है। क्लियर? पिकल्स की है, अभी तक भी है, अब है, देयर आर सो मेनी लाइक सिमिलरली यू कैन मेक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जैसे ये पापड़ बनाने हैं, बट इसको थोड़ा सा हमें रेगुलराइज करना है, प्रॉपर करना है, ठीक है। अभी ये जो क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चल रहा है, आगे हम जाके चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट मूव ऑन टू पेज नंबर 29। So we should increase opportunities for children to study in the school so that they are educated and they can get good in employment। ये हम पहले ही टैकल कर चुके हैं इसको। Government has started the midday meal
गवर्नमेंट ने इसीलिए स्टार्ट किया, एक तो बच्चों को गुड हेल्थ मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी, एंड सेकेंडली दे विल कम टू स्कूल टू स्टडी, दे विल नॉट बी टेम्प्टेड, देयर पेरेंट्स विल नॉट बी टेम्प्टेड टू सेंड देम टू स्कूल फॉर वर्किंग। अभी भी हम देखते हैं चाइल्ड लेबर हमें बहुत जगह देखने को मिलता है, बट व्हाट वी कैन डू इज ईच वन टीच वन। जैसे हमारे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है तो वी मस्ट आस्क देम, वी मस्ट एनलाइटन देम दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग एजुकेटेड। क्लियर? सो हमें किसी न किसी एक बच्चे को, इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड देन ऑल्सो डजंट मैटर, एटलीस्ट हमें उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। यू कैन कॉल एनी चाइल्ड इन द इवनिंग इन द नियर बाय एरिया। आप देखते हो कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। क्लियर? जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, they don't have the facilities of having a laptop, a Wi-Fi connection or a phone at their home. तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे आप 10th में हो देन ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक के बच्चे को आप बड़ा अच्छा पढ़ा सकते हो। तो कई ऐसे बच्चे आपके नेबरहुड में होंगे, those who are really missing out on the schools because physical schooling is not there. आपके पास ये फैसिलिटी है, you are able to attend and you are continuing with your education. तो each one teach one. अगर सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी आल्सो नीड टू डू। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं सो दैट वो बच्चा सक्सेसफुली उसका मिस आउट ना हो और वो एग्जाम में अच्छी तरह से अपीयर हो सके। If we all will contribute towards making the society better, then overall improvement will come to us. ठीक है? जैसे हमने डेवलपमेंट में किया था कि अगर हम कहें कि मेरा घर बहुत अच्छा है, साफ है, एनवायरमेंट जैसा मर्जी पोल्यूटेड हो, तो इट विल नॉट इफेक्ट अस, इट विल इफेक्ट अस। अब हम देख रहे हैं पैंडेमिक का जो असर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कोई भी ऐसी कंट्री है जो कह सकती है कि हमारे पे तो कोई असर नहीं हुआ? इट मींस थिंग्स इफेक्ट। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो वो सारी कंट्रीज को इफेक्ट करेगी। वी हैव रिसेंटली सीन दैट इन कनाडा, इन अमेरिका, द हीट वेव हैज बीन सो स्ट्रॉन्ग, so many people have died also because of that heat wave. Clear? So next is that every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area by encouraging tourism and regional craft industry. उसके बारे में मैंने आपको अभी सारा regional craft के बारे में ही explain किया है आपको, that जो regional craft है वो एक बहुत important है and people in the west, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से जो लोग यहाँ पर आते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दोज ओरिजिनल थिंग्स विच आर हैंडमेड बिकॉज दे आर नॉट टिपिकल। मशीन में क्या होता है, टिपिकली मेड चीजें होती है, एक चीज एक जैसी बनती है, उसकी जैसी लाख 2 लाख चीजें एक जैसी होंगी, बट जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक स्पेशलिटी होती है which you will not find in the machine made goods. So the states should encourage, they should work towards it. They should find out those rare areas, places. The other day I was reading in the newspaper that in Punjab also there are 2-3 sisters who are working in a remote village. Now I am not able to recollect the name of the village, that they are doing dyeing of the cloth dye करने का वो पुराना method use कर रही हैं। वो क्या करती है, इसके ट्री की बाप को स्क्रैप करती हैं, जो इसका ट्री का तना होता है ना ब्राउन कलर का, उसको स्क्रैप करती हैं, स्क्रैप करके उसको जैसे 1 हफ्ता पानी में भिगो के रखती हैं, भिगो के उसका ब्राउन कलर जो होता है वो ब्लीड कर जाता है, तो वो उसके बाद उसमें कपड़ा डाई कर रही है। सो as I told you earlier also that India is full of such things. Clear? तो उसको गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना है और प्रॉपरली चैनलाइज करना है। तो ये गवर्नमेंट कब कर सकती है, व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी एंड नॉट अबाउट ओनली अबाउट देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स एज इट इज कॉमनली गोइंग ऑन एवरी टाइम। सो नेक्स्ट इज दैट द वेरियस स्कीम्स व्हिच आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड वन इज द, जिसको हम कह सकते हैं राइट टू वर्क। आप नेक्स्ट पेज पे देखो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब इसको हम एमजी, महात्मा गांधी, हमने इसके साथ ऐड कर दिया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी इंडिया में ही एक ऐसी कंट्री है जो इतनी वास्ट पॉपुलेशन में रूरल एरियाज में ये स्कीम चला रही है। दैट इज दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि सम लेडीज एंड सम वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द रोड साइड। रोड साइड पे ये घास उगी होती है ना, वो साफ कर रहे होते हैं,
क्लीनिंग कर रहे होते हैं, कहीं पर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये रूरल एरियाज में ये चल रही है, दिस इज गोइंग ऑन। अभी इसका बहुत वास्ट सर्वे कंडक्ट हुआ है, अभी इसका एक रिसेंटली सर्वे कंडक्ट हुआ है और इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी देखने को मिली है कि दिस स्कीम इज डूइंग वेरी वेल एंड एटलीस्ट गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग बाय इट्स एक्ट जो इसने बनाया था, that providing 100 days of employment to the people in the rural areas। जैसे कोई पॉन्ड है रूरल एरियाज में, विलेजेस में आपने देखा होगा, वहां पर अननेसेसरी वाटर इकट्ठा हो जाता है, काई जम जाती है, कहीं जगह इतनी ज्यादा प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं है। तो ये जो इस स्कीम के अंडर ऐसे छोटे छोटे काम गवर्नमेंट करवाती रहती है एंड that gives an opportunity to give employment to the people in the rural areas. Now next, please open on page number 30. Here is the division of sectors, that is organized and unorganized. अब ये आगे हमने पहले इससे पहले क्या पढ़ा है, प्राइवेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये डिवीजन किस बेसिस पे है, हाउ दैट सेक्टर is operating on the basis of operation. Operation is not that surgical operation. Operation is वो काम कैसे करते हैं बेटा, sometimes due to connectivity that problem can be there. So here it starts with an example. I am reading now. One is of Kanta and then next is of Kamal. So Kanta is working in an office and Kamal is working in a shop in the in his or her neighborhood. So हम इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है कि एक जो वर्कर है जो एक प्रॉपर ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास कितनी फैसिलिटीज हैं, सैलरी टाइम पे मिलती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं उसके, उसको लीव की फैसिलिटी है, उसके पास मेडिकल फैसिलिटी है, गवर्नमेंट इज गिविंग पेंशन, ओके। बट उसी जगह पर एक ऐसा पर्सन है जो किसी एक ऑर्डिनरी शॉप पे काम कर रहा है, बट उस शॉप पे उसको ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू गेट दीज फैसिलिटीज, ठीक है। तो अब इसको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। सो लेट अस रीड फर्दर दैट व्हाट इट एक्चुअली मींस। Kanta works in organized sector. Organized sector covers, अब आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, this is what tells us about what is organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. हमारे पास अब दो फीचर्स हमें पता लग गए कि organized sector क्या होता है, terms of employment are regular, surety of work is there. assured work का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर में जनरली हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इनसिक्योरिटी बहुत है, एनी टाइम यू कैन बी टोल्ड दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अब जैसे पैंडेमिक में हुआ, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी प्राइवेट में, जहां पर लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ का क्या मतलब होता है, फॉर सम टाइम द पीपल हैव बीन टोल्ड दैट you are not required in the work, your requirement in the work is not there, तो उसको हम कहते हैं ले ऑफ। तो उनको ले ऑफ कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, राइट। सो इट मींस दैट पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस। Now next let's read, they are registered by the government and have to follow its rules and regulations. अब third feature हमारे पास क्या आ गया, that they are either government organizations or registered with the government. It can be both. चाहे वो registered with the government भी हो सकती है, चाहे वो government run भी हो सकती है, and they follow the rules and regulations which are made by the government. गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बनाए होते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर आती हैं
उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, which are given in various laws such as the Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity, Shops and Establishment, etc. कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है फॉर द वर्कर्स, देयर सिक्योरिटी. तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो उनके अंडर वर्कर्स होते हैं, दे गेट दीज बेनिफिट्स. Right, it is called the organized because it has some formal processes and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they do have registered themselves with the government and follow the rules and regulations. कई बार आपने देखा होता है कि registered लिखा होता है और registered government organization. तो कई बार क्या होता है, कोई independent organization हो सकती है, but after working for a few years, as the terms and conditions are provided by the government, they get themselves registered with the government. तो ऐसी organizations भी जो है वो organized sector के अंडर आ जाती हैं. Workers in the organized sector enjoy security of employment. This we have already discussed. They are expected to work only for fixed number of hours. तो ये हमें तो yes, we always know that in the government working जो है, अब जैसे private sector है, work from home है, ठीक है, any number of hours you are working, you start in the morning and it can continue till 11 till 12, right? There are no vacations, no Sunday, no Saturday. आपको meetings attend करनी है, you have to do so much of work from home only. So that can be there in the unorganized sectors, but not in the government this organized sector. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to paid overtime by the employer. तो बहुत this is not much, कई sectors में होता है, बहुत कम organizations हैं जहां पर overtime की अलग से conditions होती हैं. So those are specified when you take such employment. They also get several other benefits from the employees. तो और benefit मैंने आपको बताया, जैसे proper leave होती है, then they have medical leave benefits also, then they have the benefit of pension also. In the organized, they get, अब उन्होंने आगे बताया हुआ है, they get paid leaves, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. Okay, so they have these facilities in the organized sector. They are supposed to get medical facilities. So all this is about the features of the organized sector. So these are not very difficult to write. In the notebook you can write that what are the features of the organized sector. Please don't copy from anywhere. आपकी टेक्स्ट बुक में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है. फीचर्स में सिर्फ आपने 1 2 3 करके यही लिखना है कि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग. ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फीचर्स होंगे नेचुरली जब हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करेंगे तो उसमें नहीं है. नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर, फिक्स्ड आवर्स वर्किंग आर नॉट देयर, फैसिलिटी ऑफ पेंशन इज नॉट देयर. तो अगर हम एक सेक्टर के जो हैं फीचर्स अच्छी तरह से कर लेते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम बड़ा इजीली डील कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू क्रैम दीज आंसर्स. इन कंट्रास्ट, Kamal works in an unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. So unorganized का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? That it is not under the control of the government. There are rules and regulations, ठीक है, but some good organizations are there, वो follow करती हैं, ठीक है, but at a very small level we might see that there can be total exploitation of the workers. It goes on, it happens. Total exploitation of workers is there in various big organizations also. Sometimes they might be registered also, but always they don't follow. Jobs here are low paid and often not regular. तो ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसकी whims and fancy हम कहते हैं कि उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि whenever he feels that a worker is not performing up to the expectations, he or she can be shown the door. Shown the door का मतलब होता है कि he or she can be told that from tomorrow his or her requirement is not there of the worker. So this is a very important factor, that job insecurity, somewhere or the government should take up these organizations also, and some fixed laws should be there so that the job security of the person is
there. Next is there is no provision for overtime, paid holidays, employment is not secure. People can be asked to leave the work without any reason. Where less work is there during some seasons, the employers can remove those workers. ये होता है हमारा एग्रीकल्चर में भी होता है और इंडस्ट्री में भी होता है, स्पेशली इन दोज इंडस्ट्रीज विच आर सीजनल इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब ज्यादा लेबर हमें कब चाहिए होती है, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे चाहिए होती है. तो क्या होता है कि एक फार्मर जो है वो सोइंग और हार्वेस्टिंग में ज्यादा लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट इन बिटवीन जब क्रॉप ग्रो कर रहा है 2-3 महीने उसको इतने लोगों की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर a person is unemployment due to the nature of employment. Nature of employment means कि वो agricultural worker है. ठीक है, तो वो सोइंग और हार्वेस्टिंग में ही एम्प्लॉय हो पाता है. जब उसके बीच के 3 महीने होते हैं when the farmer doesn't require him or her, so at that time those people are unemployed. इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब ये ऐसी इंडस्ट्री में भी नजर आता है हमें, जैसे शुगर इंडस्ट्री है. शुगर इंडस्ट्री में जो हमारी ये जो मिल्स हैं, शुगर मिल है, ये थ्रू आउट द ईयर रन नहीं करती हैं. तो इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे कैजुअल वर्कर्स हैं जिनको सिर्फ उस टाइम पे एम्प्लॉय किया जाता है जब शुगर मिल्स चल रही होती हैं. ऐसे ही हमारी हाउसरी इंडस्ट्री है जिसमें ये स्वेटर्स बनते हैं. लुधियाना में हमारे पास है, इतनी इंडस्ट्री है, स्वेटर्स बनते हैं. अब स्वेटर्स क्या होता है कि अगस्त से लेके जनवरी तक जब ऑर्डर्स चल रहे हैं, जब वो सीजन आया है, तो इन बिटवीन क्या होता है, मे बी फरवरी टू अप्रैल, फरवरी टू मई, इतनी जो प्रोडक्शन है वो इतनी हैवी प्रोडक्शन नहीं होनी है. तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको ले ऑफ कर दिया जाता है. So this kind of a problem can also be faced, and this is called as seasonal unemployment, which we face both in the rural and in the urban areas. Clear? So for today, we will cover this organized and unorganized sector. Now further than tomorrow, we will discuss about that how we can protect the workers in the unorganized sector. Okay, so I'll continue now in the next lecture. So today, if you have any difficulty, something which you have not understood, so now you can ask your doubts.